ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਮਾਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਟਿਕਰੀ ਵੱਡ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਆਮੀਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਇਸਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਮੰਥ, ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੁੱਕਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ? ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਵਾਧੂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਲੈਣ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਠਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਟਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ? 10 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਰਿਹਰਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ 10 ਮਿੰਟ। देख लो यारो, दूसरी आकर देख लो यारो, रोज तमाशा होता है। दिल्ली आकर देख लो यारो, रोज तमाशा होता है। अरे दिल्ली आके देख लो यारो, रोज तमाशा होता है। दिल्ली आकर देख लो यारो, रोज तमाशा होता है। लोगों से कीर्ति लोक टीवी पे आपका बहुत स्वागत है। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम है कपिल। आपकी टीम का नाम? संगवारी। कहाँ से आए हो आप? हम दिल्ली के ही हैं, संगवारी दिल्ली का ग्रुप है। ये जो आंदोलन चल रहा है काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, पिछले 2 महीने से चल रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये आंदोलन मतलब इन किसानों ने जो डेरा डाला है, धरना जो किया है, वो तो मान लीजिए 63 दिन 64 दिन हुए हैं इसको, लेकिन असल में ये आंदोलन तभी से शुरू हो गया था जब ये कानून पास हुए थे। और ये कानून पास भी नहीं हुए हैं, इन कानूनों को ज़बरदस्ती पास करवाया गया। राज्यसभा में मान लीजिए वो माइक बंद करवा दिया गया और कह दिया गया कि पास हो गया। तो ये गुंडागर्दी है, ये कानून नहीं है, संविधान सम्मत कानून तो ये किसी हालत में नहीं है। और ये किसानों पे एक तरह से कंपनी राज थोपने का मामला है।
आप जैसे बोल रहे हो आप दिल्ली के रहने वाले हो आप, जो पथराव हुआ है टिकरी बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, वो बोले जो दिल्ली के स्थानिक लोग हैं वो ही हंगामा कर रहे हैं, वो बोले बॉर्डर खाली करो। आप उसके बारे में क्या है, वो सच में दिल्ली के स्थानिक लोग हैं या कोई और है? नहीं, देखिए दिल्ली के लोग जो ये जिन लोगों ने पथराव, ये केंद्र सरकार की ना पहले से बनाई हुई स्क्रिप्ट है। आप ये समझ लीजिए कि जब सीए एनआरसी वाला आंदोलन हो रहा था तब भी एग्जैक्टली इनका यही किस्सा था कि भाई जो स्थानीय लोग थे वो पहुंच गए, उन्होंने पथराव किया, और वो भी बीजेपी के लोग थे। बाद में पता चला जिसने गोली चलाई उस आदमी को भी बीजेपी में शामिल कर लिया गया, बाद में निकाला गया लेकिन शामिल तो कर लिया गया। और इनका एक पहले से बनाया हुआ स्क्रिप्ट होता है। ये क्या करते हैं, अपने गुंडों को भेजते हैं और वो गुंडे पथराव करते हैं और वो गुंडे कहते हैं कि हम जो है स्थानीय लोग हैं। दिल्ली के लोग किसानों के साथ हैं, इस आंदोलन के साथ हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिल्ली के लोगों ने किसान मार्च को इनकलाब जिंदाबाद किया, फूलों की बारिश की, उनको बिस्कुट और केले जो वो दे सकते थे दिए, और दिल्ली के लोग किसानों के पूरी तरह साथ हैं। 26 की हिंसा के बाद आंदोलन थोड़ा सा बिखर गया था, किसान भी थोड़े सहम गए थे, लेकिन अब थोड़ा देख रहे हैं थोड़ा उबार आ रहा है इस आंदोलन में। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, भी सच में उबार आ रहा है, दिल्ली के लोग भी जुड़ रहे हैं, किसान भी जुड़ रहे हैं? देखिए, एक तो ये कहना गलत है कि 26 को हिंसा हुई। 26 को हिंसा किसानों की तरफ से एक तो नहीं हुई। जब किसानों के बने हुए पथ पे, रूट पे भी बैरिकेड लगा दिए, और आप समझ सकते हैं, एक तो ना इस देश में बहुत अजीब सा मामला है कि पुलिस की बात पे यकीन कर लिया जाए। इस देश का संगठित अपराधी गिरोह है पुलिस की एक बात पे भी भरोसा किसी को नहीं करना चाहिए। पुलिस वालों ने जानबूझकर किसानों के ट्रैक्टर को तोड़े, जानबूझकर उन पे लाठियां चलाई, और जब बीजेपी के गुंडे पहुंचे तो उनको पूरा संरक्षण दिया। अभी भी आप देख लीजिए, सिंघू बॉर्डर पे जिन लोगों को पथराव के बाद, स्टोन पेल्टिंग के बाद पकड़ा है, वो सारे आंदोलन के लोग हैं। जिन लोगों ने स्टोन पेल्टिंग की उनको नहीं पकड़ा है, और ये बीजेपी का स्क्रिप्ट है। तो हिंसा किसानों की तरफ से नहीं हुई, एक तो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जैसे जैसे दमन करोगे वैसे वैसे आंदोलन और बढ़ता जाएगा, और ये आंदोलन जो है इस बात को लेके चल रहा है कि ये कृषि कानून तो वापस होंगे ही होंगे। 26 जनवरी को जो बोल रहे हैं कि केसरी झंडा जो लाल किले में फहराया गया है, उसके बारे में जो दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं, आपका क्या सोचना है? देखिए, एक तो मामला ये है कि लाल किला किसी एक आदमी का नहीं है। लाल किला इस पूरे देश की जनता का है, किसान इस जनता के हिस्से हैं, और अगर किसान 26 जनवरी को लाल किला जाना चाहते थे तो उनको जाने दिया जाए। और एक तो ये जो नैरेटिव बनाया गया है ना, कहानी जो बनाई गई है कि किसी तिरंगे का अपमान किया, किसी ने तिरंगे का अपमान नहीं किया। उसके तिरंगे के नीचे आप 17 झंडे लगा सकते, उन्होंने लगाया। अब वो झंडा किसान यूनियन का था या सिखों का अपना निशान था, ये एक अलग मामला है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इस देश का पीएम जो है वो तिरंगे से अपना मुंह पोंछता है, तब किसी को नहीं लगता कि अपमान हो रहा है। जब कर्नाटक में वो लोग बीजेपी के लोग केंद्रीय मंत्री के होते हुए झंडे को जो है सड़क पे रगड़ा देते, तब झंडे का अपमान नहीं होता। और जब किसान यहाँ अपना निशान लगा देते तो तिरंगे का अपमान हो जाता है। ये नैरेटिव है और कुछ नहीं है। किसान इसी देश के हैं, किसान इस देश के साथ हैं, इस मिट्टी के लाल हैं, और हम किसानों के साथ हैं। कीर्ति लोक टीवी से आपने बात की, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, ਇਹ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਾਟਕ ਟੀਮ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਮਾਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।